Now one question is there. If the percentage increase if the percentage increase in pressure is 1% at constant temperature and for a given amount of gas. Then what will be the percentage decrease in volume? अगर प्रेशर 1% से बढ़ता है गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए तो वॉल्यूम कितने परसेंट से घटना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन. A 1%, B greater than 1%, C lesser than 1%, D cannot be determined. सर शायद से लेसर देन 1%. क्या है सर क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये वॉल्यूम के, तो उससे मतलब हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि लेस देन 1% होगा उसका. अगर सॉल्व करेंगे तो लेस देन 1% हो सकता है. सॉल्व कर लिया तुमने? तो मतलब प्रेशर इक्वल टू 1/100, सो फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 0.11 आए 0.001 पर आएगा. देखते हैं. ओके अब मैं नहीं, किरण सेज दैट ठीक है. अपना नाम लिखो यार आईडी के सामने. M023 नाम लिखो. ओके पंखी. We'll check it out. So Kiran is saying 1%, Divyansh less than 1%. अच्छा. Panki 1% again. Okay, 1%. चलो great. Yeah, guys. Aditya saying 1%, Steffi 1%, Aditi less than 1%, Neha 1%, Ira 1%. Okay. Okay. मैं अनदि वैदेही. ओके सब 1% बोल रहे हैं.
बी आया, रिमझिम, सिद्धेश बी, सी दोनों। सर सी है वो, गलती से बी भेज दिया। अच्छा, यशस 1%। चलो अभी एक काम करते हैं, रुको, बहुत हुआ। देखो चक्कर क्या है, जो लगता है ना, जो नॉर्मल थॉट प्रोसेस लगता है कि अगर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, तो अगर प्रेशर 1% बढ़ता है तो वॉल्यूम 1% घटना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। नाउ अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नाउ लिसन टू इट। ये स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स बहुत लोग करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, नाउ shall I say that it says that नहीं Pankaj, wait. Now solution. What solution says here? Okay, we'll check it out now. Khushi, 1 second, we'll check it out. Now solution. Now shall I say that the increase in pressure is 1%? So shall I say that P2 is the final pressure? Final pressure is equal to initial pressure plus 1% of initial pressure. Shall I write down like this? Yes, sir. P2 increases by 1%. So that is nothing but P2 increases by 1%. Now understand that P2 is equal to 101 by 100 P1. I'll get this relationship till now. And I want to calculate the decrease in volume. What is percentage decrease in volume? Percentage decrease in volume is equal to V1 minus V2 divided by V1 into 100. Agreed? यही होगा percentage decrease. Yes, sir. Right? Now listen, apply Boyle's law. What is Boyle's law? P1 V1 is equal to P2 V2. Agreed? Yes, sir. हाँ, तो मुझे V2 चाहिए, तो shall I say that V2 is equal to P1 V1 by P2. So P1 by P2 is equal to 101 by 1 second. It'll be 100 by 100 by 1 01 V1. V1. Agreed? Yes, sir. This is equation number 2. This is equation number 3. Now you do one thing. Yeah, Khushi. We'll check it out. Now, what do you have to check here? V1 minus V2 divided by V1. So I'll do one thing. V1, I'll just put V2 in terms of V1. That is 100 by 101 into V1 divided by V1 into 100. So it comes out to be V1 by 101 into V1 into 100. That is percentage decrease in volume. That comes out to be 100 by 101. Is it 1% or lesser than 1%? Less than 1. Less than 1. Less than 1%. So answer will be, 0.9. you want to copy this? Done. एक मिनट सर जेई में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं पूछ सकते? क्या प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? आराम से पूछ सकते हो। ओके सर। डन। सर एक डाउट है। हम्म, सर जो लास्ट क्लास आपने जो ग्राफ करवाए थे वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के वक्त करवाए थे ना? नहीं, तो सर किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी नंबर ऑफ मोल्स पे करवाए थे।
किसने बोला स्टैंडर्ड था वो? नहीं सर, ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट सर नॉर्मल टेम्परेचर पे की करते तो वैसे ही आता, हाँ, रूम बट मुझे टेम्परेचर। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखना है। ओके सर, हाँ हाँ ये समझ गया सर। हाँ बेटा। डन बेटा? यस सर। Written everyone? Guys, have you written that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Now, next, Charles' law. What is Charles' law? What Charles told, so that for a given amount of gas, the volume occupied by the gas, is directly proportional to the temperature in Kelvin at constant pressure. Getting it? Guys, यस सर। now understand one thing. You know that PV is equal to nRT, right? एक बार बताओ, for a fixed amount of gas, that means number of moles of gases are constant. हाँ सर। Constant pressure is constant. हाँ। Very good. Now R, which is a gas constant, is constant. हाँ सर। Now 1 second. So shall I say that V is equal to nR by P into T, correct? Right? हाँ सर। N is constant, R is constant, P is constant. So shall I say that V is equal to constant into T? That means V is directly proportional to temperature. Yes or no? हाँ सर। That's what. Yes. And listen, temperature should be in Kelvin, right? हाँ सर। Great. Listen, कोई समझाओ मेरे को ऐसा क्यों? केल्विन पे एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है। क्या क्या बेटा? ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने में वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने में वॉल्यूम? सर हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट जो रहता है वो टेम्परेचर केल्विन में ही कांस्टेंट रहता है ना, हाँ, तो इसीलिए सर, क्योंकि अगर कोई दूसरा मेजरमेंट में नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या सर सर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हाँ। जिसके कारण वो वॉल्यूम एक्सपैंड होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब तो इसके कारण सुनो, सही जगह जा रहे हो, तभी रुकवाया। सुनो, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक पिस्टन है। यस सर। आई हैव अ पिस्टन, ठीक है? चलो, अब मेरे पास एक पिस्टन है, जो अंदर का प्रेशर है वही बाहर का प्रेशर होगा, तभी पिस्टन रेस्ट पर है। हाँ सर। जो अंदर का प्रेशर होगा वही बाहर का प्रेशर होगा, राइट? तो प्रेशर इंटरनल
इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल। हाँ सर। अभी मेरा जो पिस्टन है वो रेस्ट पर है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको टेम्परेचर दिया, मतलब हीट दिया। जब हीट दिया, आई अप्लाई हीट ओवर इट। जब मैंने इसको हीट किया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आई हैव गिवन इट, राइट है। जैसे मैंने हीट दिया इसको, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर का। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर, बढ़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल बढ़ेगा तो क्या होगा अंदर, ये मॉलिक्यूल इस पे कोलाइड करेगा। हाँ सर। तो प्रेशर क्या करना चाहिए? तो प्रेशर क्या करना चाहिए? तो उस केस पे प्रेशर बढ़ सकता है। बढ़ना चाहिए ना, सुनो, बढ़ना चाहिए ना। अगर हाँ। मेरे को ये जो पिस्टन है वो मूव कर सकता है और बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है, करेक्ट, दैट इज 1 atm। हाँ सर। तो सपोज करो जैसे ही अंदर का प्रेशर 1.2 हो गया, कितना हो गया? 1.2। तो बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, हाँ सर। तो पिस्टन को क्या करेगा, ये तो मूव करने की कोशिश करेगा। धक्का देगा बाहर की हाँ तरफ। सर, धक्का देगा। पिस्टन को जैसे ही धक्का देगा बाहर की तरफ, वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर घटेगा सर। कम हो जाएगा। कब तक कम होता रहेगा? सर जब तब तक तक वो बाहर का और अंदर का सेम। सेम नहीं हो जाता। हाँ, और अगर यही चीज हर एक मूवमेंट पे हो रही है तो मतलब जैसे ही हल्का सा प्रेशर बढ़ा, इसे धक्का देके प्रेशर फिर से 1 atm कर दिया, फिर हाँ, से तो सर बढ़ा, कांस्टेंट होने के धक्का चांसेस देके है तो सर। प्रेशर क्या हो जाएगा? तो फिर प्रेशर शायद टेम्परेचर से शायद कांस्टेंट। एग्जैक्टली, समझ आई बात, वॉल्यूम के बढ़ता है। हाँ सर। अंडरस्टैंड? सर एक बार फिर से बताओ ना। हाँ बेटा, मैं कह रहा हूँ अगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, अंदर के जो गैस पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो सपोज करो बाहर प्रेशर 1 atm है, तो अंदर क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा तो अब अंदर का प्रेशर लेट से 1.0000001 atm हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अंदर का जो प्रेशर है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो अंदर का प्रेशर जो बाहर का प्रेशर है, तो ज्यादा कौन सा है, अंदर का है बाहर का? गाइस, प्रेशर अंदर का बढ़ा है कि बाहर का बढ़ा है? सर इंटरनल प्रेशर। हाँ, अगर इंटरनल प्रेशर बढ़ा है तो ये वाला दबाव ज्यादा है या बाहर वाला दबाव ज्यादा है? तो फोर्स कौन ज्यादा दे रहा है? सर इंटरनल। Internal. अगर इंटरनल की तरफ से फोर्स बढ़ेगा तो पिस्टन का मूव करेगा। बाहर की तरफ और तुमको पता है ना, जैसे ही टेम्परेचर जैसे ही तुम वॉल्यूम बढ़ाते हो, प्रेशर क्या होता है? जैसे ही डिक्रीजेस। हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर क्या हो गया? decrease. कम हो गया ना। तो जैसे ही हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा, फिर से प्रेशर 1 atm हो गया, फिर से प्रेशर 1.001 atm हो गया, फिर से प्रेशर 1 atm हो गया। जब हर बार बाहर का प्रेशर 1 atm है, तो हर बार टेम्परेचर बढ़ने पर पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा। Yes, sir. और जैसे ही बाहर की तरफ मूव करेगा, करता रहेगा जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। Same. ये जो चीजें हो रही है वो किस प्रेशर पे हो रही है? सर कांस्टेंट प्रेशर पे। यही मैं बोल रहा हूँ, गेटिंग इट? सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, the kinetic energy of gas particles, the kinetic energy of gas particles increases, which will apply large force on the inner side of the piston
which results in increase in volume. बात समझ में आई guys? Yes, Yes, sir. sir. बेटा बात समझ में आई? Yes, sir. Okay. Now what we'll do is do a problem based on it. Shall we move ahead? Sir, 1 minute. Okay. Share up this. Yes, sir. Okay. Yeah. Okay. Now graphs of Charles law. Okay. Now tell me, according to Charles law, volume is equal to NR by P T. Agreed? Guys, agreed? Yes, sir. Okay. Now listen. First graph. I have volume versus temperature in Kelvin. You tell me when what should be the straight line curve? In y-axis, I have plotted V will become like y is equal to, on the x-axis I have T will become NR by Px. So what is that? Y is equal to mx, right? Yes, sir. Then, sir, we try to fix the piston and pressure will increase, right? Yeah, Amit. So what will happen? Straight line curve passing through? Origin. Understood? So I have, let's say, in this equation, straight line curve passing through origin. Let's see how you do justice with it. Let's say this is number of moles N, number of moles N, number of moles N, pressure P1, pressure P2, pressure P3. This is angle theta 1, slope is theta 1, tan theta 1, angle theta 2, and slope angle is tan theta 3. Now listen, theta 3. You have to comment over pressure P1, P2, and P3. P3 is maximum and P1 is minimum. How can you say that?
because the slope of N1 P1 is less than N1 P3. सर P1 is maximum और P3 सर minimum, P1 is maximum. क्योंकि एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में ना P, तो फिर जितना ज्यादा होगा तो फिर उतना कम रहेगा। Inversely proportional है. जो स्लोप है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, राइट? यस सर। किसका ज्यादा स्लोप है, P3 का या P1 का? सर P3 का ज्यादा स्लोप है। ऑब्वियसली, तो P3 क्या होगा? सबसे सर कम होगा। Comma. अंडरस्टूड? यस सर। नाउ B, you do one thing, take log or make it like, see here I have volume and temperature, right? Sorry, volume and temperature. So suppose if I want to plot the temperature in degrees Celsius, what should I do? Tell me, if I have temperature in degrees Celsius, let's say theta degrees Celsius, how to convert that theta degrees Celsius into Kelvin? सर Add- just Add 273.15। 273. Point 1.5. 1.5 plus, correct? Yes sir. Yes sir। Shall I do one thing? I know that PV is equal to nRT, correct? Yes sir. So V is equal to nR by P. Temperature should be in Kelvin. So temperature should be in Kelvin. Shall I put this thing there? Because that is also temperature in Kelvin only now. Yes sir. It'll be like 273.15 plus theta degrees Celsius. Now understand that I will get V is equal to nR by P into 273.15 plus nR theta degree divided by P. Now tell me what equation it is. If I want to plot the curve between volume and theta degrees Celsius, volume and temperature should be in theta degrees Celsius. Now tell me, on the y-axis I have taken V. What is that? Is it something or is it just a constant? Constant. Constant को क्या बोलते हैं? Okay. Y intercept. हाँ y intercept. Y intercept बोलते हैं, right? Yes sir. Constant को y intercept बोला जाता है. So this is y intercept, and what is this? Theta. X axis. हाँ X. sir. What will become this? What is this? सर ये Slope. problem. अब मुझे बताओ, x is theta degree, this is slope, this is y intercept. Y intercept is positive or negative? Okay, positive. तो कहाँ से कैसे जाएगा लाइन, ये बताओ पहले. स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive है. स्लोप पॉजिटिव है, तो कैसे करूं? ओरिजिन से जाएगा. नहीं सर, ओरिजिन से नहीं जाएगा. ऑरिजिन से नहीं जाएगा. इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, Positive y के ऊपर से जाएगा. यहाँ से जाएगा, करेक्ट? हाँ सर. करेक्ट. हाँ सर. हाँ सर. रुको बना रहा हूँ. ये ठीक है? हाँ सर. ये ठीक है? हाँ बोलो. Yes sir. ये ठीक है? ये ठीक है? ये हो जाएगा θ1, θ2, θ3, θ4. कौन सा ज्यादा? θ1 सर. θ1. हाँ सर. स्लोप, 1 सेकेंड.
इसको ले लेते हैं आप P1, इसको ले लेते हैं P2, इसको ले लेते हैं P3, इसको ले लेते हैं P4, नंबर ऑफ मोल सेम रख लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, रिलेशन बताओ, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम? सर P4 सबसे छोटा। ऐसा क्यों? सर क्योंकि वो अभी इसमें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। जो स्लोप है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर स्लोप प्रेशर के अलग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ही कम प्रेशर होगा ना? हाँ सर। और वाई इंटरसेप्ट देखो, ये एक वाई इंटरसेप्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हाँ सर। तो वाई इंटरसेप्ट कौन सा? वाई इंटरसेप्ट भी पी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में? हाँ सर। ज्यादा क्या होगा, P1 या P4? ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये वाई इंटरसेप्ट ज्यादा है तो P4 कम हो गया। हाँ सर। तो आंसर क्या हो गया? P1, P2, P3 एंड देन P4। डन? यस सर। यहाँ पे इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0 आ रहा है, तो टेम्परेचर -273.15 आएगा हाँ सर। डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है तो टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। डन? यस सर। वेरी गुड। हटाओ इसको। नहीं सर, एक मिनट, ओके स्क्रीनशॉट लेके फिर हटा सकते हैं तो चलेगा। Guys, shall I rub this? Right? हाँ सर। Yeah. Anadi, we have derived an equation in which it came that way. See that? See, this is slope and this is intercept. See the intercept. N is constant, R is constant, this is constant, inversely proportional to pressure. Sir, Yes. sir, but why did we take 273.15 into NR by P as y-intercept? 1 second. Do you know, like, once I compare it, I know that I have taken V in y-axis, right? So this will become y. Yes, sir. I have kept theta degree Celsius in x-axis. So this become x. Yes, sir. This will become slope m. And this entire thing is constant. And this entire thing which is constant is known as? Y-intercept. And that's what. It automatically came that way, right? Sir, but why can't we take 273.15 as the slope? 1 second. What is x-axis? Theta degree Celsius. And according to a straight line curve, slope is associated with x-axis, right? Yes, sir. So this is slope. Okay, sir. I didn't see that. Yeah. Done? Okay. Now, PV, we know that volume is equal to K into T, directly proportional to temperature.
So shall I say that V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to V2 by V3 by T3 is equal to constant. Right? Now understand one more thing. Take log. It will be like log of V is equal to log of K into T. Log A into log B क्या आएगा? Log of A, that is K plus log T. So I got log V is equal to log of K plus log of T. So just plot that equation. What you'll get? On the y-axis, I have used log V. On the x-axis, I have taken log T. This is intercept, y-intercept. So what should be the graph? Guys, what should be the graph? बेटा ग्राफ कैसा होगा? So log K will be y-intercept. Yeah. Log And K log- will be y-intercept and log T will be x. So what is the value of M? 1. 1. 1 मतलब tan Theta is कितना equals to 45. Exactly. Tan 45 होगा, right? Yes, sir. Cutting positive y-axis. Correct. So we'll cut positive y-axis, right? Sir. Yeah. It'll happen that way. Done? Done. Yes, sir. So this is सर एक बार और समझा दीजिए. हाँ बेटा देखो I got this equation. Simply I have taken log so that you can analyze this thing with the help of log also. So I have taken log V. हाँ बेटा बोलो. हाँ सर. नहीं किसी ने कुछ पूछा था अभी. चलो एनीवेज V is equal to KT होता है राइट. हाँ सर. मैंने क्या किया मुझे पता है यार इट इज NR by P. तो K is nothing but NR by P. मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ log of NR by P plus log T. ठीक है. Now understand one thing. Log V को y axis में डाला. That will become intercept C and log T will become mx. Now understand why I have taken this way. I want to draw the graph. I want to draw the graph. Understand that this is y-axis is log V. So I have taken log V on y-axis and I have taken log P. on x-axis, correct? हाँ सर. Now just compare this equation with this. So y is equal to mx plus c. So what is the value of m? What is the value of m? 1. 1. What is this c? Log intercept. Okay. Log intercept. Right? बात बताओ. If you got all these things all correctly, now listen to me. Let's say I'll get the graph like this, in which I'm getting a positive slope, and the slope is 45 degrees. That means this particular angle comes out to be 45 degrees. That is tan 45 is 1.
Agree? हाँ And what is sir. that? Intercept. That हाँ is सर log of NRB by P. Log of NRP by NR by P. Understood? हाँ सर हाँ स्लोप की वैल्यू 1 कैसे आई? बेटा M कितना है? Just compare it, right? अच्छा हाँ ओके ओके सर. Share of this. Sir, wait. Okay. सर केमिस्ट्री में सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्या? सर एक मिनट क्या बोला? केमिस्ट्री का सिलेबस केमिस्ट्री में सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्या सर? काटे मतलब मतलब गवर्नमेंट अभी ये सीबीएसई का एक आया था कि केमिस्ट्री फिजिक्स सब मतलब रिड्यूस हो गया है सिलेबस. ओके तो सर केमिस्ट्री में हुआ है क्या सिलेबस? मतलब उतने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे कि कम चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? देखो आई डोंट नो, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आई नहीं है हमारे पास, राइट? ओके तो सर कल ही सर्कुलर आया था कि 30% रिड्यूस कर दिया है. हाँ तो सर. बोर्ड्स के लिए बस. किसके लिए? हाँ सर वो स्कूल बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा शायद. व्हाट अबाउट कंपटीशन देन? उसमें तो पूरा आएगा. हाँ मैं तो वही कह रहा हूँ ना, तो उसके लिए कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, बोर्ड्स के लिए तो कम होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन फिर भी पढ़ाया सब जाएगा. हाँ एक मिनट, गिव मी अ मिनट. यस सर. या so I don't know whether they'll reduce it or not, but it's fine. Whether they are reducing it, they are not reducing it, we are doing our syllabus, right? यस सर. Yeah. Huh. Okay, give me a minute. Shall we move ahead? Yes sir. Hello, great. Now we'll solve some problem based on that. I'll do one thing. I'll just remove that thing, right? We'll do one more law. What other law is there after Charles' law? What is the next law after Charles' law? Okay, one question. If the percentage increase, I'll write down properly. If the percentage increase in temperature is 1%, what is the percentage
increase in volume. Percentage increase in volume. Tell me that. If the percentage increase in temperature is 1%, what will be the percentage increase in volume? A, 1%, B, less than 1%, C, greater than 1%, and D, can't be determined. Sir, what about other conditions? What? Sir, what about other conditions? What about other condition? Keeping Charles law in the mind. ठीक है? Keeping Charles law or keeping pressure and number of moles constant. ठीक है? Now you can apply Charles law. So P1 V1 equals to P2 V2. अरे pressure is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature, right? हाँ सर. Then सर वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सर अगर P1 V1 सपोज निकाले तो फिर P1 इक्वल्स टू 1 by V1 ना सर, तो प्रेशर इनवर्सली हो जाएगा. क्या कह रहा है बेटा? सर मतलब कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. पहले तो ये बताओ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? प्रेशर और टेम्परेचर में. प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप. ओके सर. तो हो गया. चलो नाइस. Yeah, listen. The percentage increase in greater than 1%. Purvi will check it out. Khushi, correct. Now listen. This is very simple, very simple. Hey, D015, what's your name? Write your name there. Now percentage increase in temperature is 1%. देखो एक काम कह रहा हूँ कि T2 is equal to T1 plus 1% of T1. That is 1 by 100 of T1. Right? And he want me to calculate the percentage increase in volume, that is V2 minus V1 divided by V1 into 100. Is it correct? This is what I have to calculate, right? Increase in volume with respect to V1 into 100. अरे ये calculate करना है कहो हाँ या ना? Guys, we have to calculate this, right or not? Yes, sir. Very good. So shall I say that T2
is equal to 101 by 100 T1. Agreed? Yes, sir. Very good. We know that V by T is constant. So V2 by T2 is equal to V1 by T1. Agreed? Yes, sir. So what is V2? V2 will become equal to T2 by T1 into V1. तो T2 by T1 कितना आया? T2 by T1 is 101 by 100. So I'll get 101 by 100 V1. Any doubt? So V2 will become 101 by 100 V1 minus V1 divided by V1 into 100 is equal to how much percent? Now it will become 1 by 100. V1 will get cancelled into 100. So exactly how much percent I'll get? Understood? Understood? Yes, sir. हटाओ इसको अभी. Hey, the student who want to write it down, let's write it down. जल्दी लिखो उसको. सर हाँ बेटा. कैन यू रिपीट? क्या हुआ? रिपीट कर सकते हो वापस? हाँ ना बेटा. देखो इतना समझ में आया कि T2 जो है वो 1% ज्यादा हो गया T1 का. बेटा ये हाँ सुनाई दे रहा है मुझे. मैं ये कह रहा हूँ ये समझ में आया कि T2 जो है वो T1 का 1% इंक्रीज होगा. तो ऐसे लिखना है. हाँ सर. तो T2 will become equal to 101 by 100 T1. ये समझ में आया? हाँ सर. Okay. Now understand that हमें पता है ना कि V is directly proportional to T. तो V by T जो है वो कांस्टेंट होगा. करेक्ट? हाँ सर. तो V2 by T2 is equal to V1 by T1 हम लिख सकते हैं. हाँ. तो V2 क्या हो जाएगा? V1 by into T2 by T1. और अब वहाँ तक समझा वो जो आपने नेक्स्ट किया है ना वहाँ से. ये हाँ. देखो मैंने क्या पूछा? परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम. इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. हाँ सर. किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है? इनिशियल वॉल्यूम के. हाँ सर. V2 minus V1 divided by V1 into 100 यही निकालना. परसेंटेज इंक्रीज. करेक्ट? यस सर. तो 101 by 100 V1 minus V1 into 100. हाँ समझ गया सर. समझ गया सर. एक बार फिर से बताओ ना, वो स्टेप लैग हो गया था. कौन सा वाला भाई? V2 minus V1 upon V1 into 100 वाला. हाँ देखो ना. V2 minus V1 that is increase in volume. V2 minus V1 is increase in volume. ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में? इनिशियल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में. सही है? हाँ सर. परसेंटेज की परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम. तो V2 की जगह यहाँ से जो निकाला है वो डाल दो. ओके सर. V1 क्या 101 by 100 minus 1 गया तो 1 by 100 आ गया into 100 1% आ गया डायरेक्टली. अंडरस्टूड? बात समझ में आई? यस सर. वेरी गुड. हटाओ इसको. गाइस शेयर अप दिस नाउ. यस सर. तो आंसर क्या आया? ए. Okay. Now, third law. Is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac लॉ ने क्या कहा? मुझे पता है PV इज इक्वल टू NRT है. करेक्ट? बोलो हाँ. यस सर. हाँ.
एक बार बताओ, उस भाई साहब ने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया, आर तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर। तो लिख सकते हैं फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस at constant volume, at constant volume, pressure exerted by the gas is directly proportional to किसके? टेम्परेचर सर। proportional to temperature of gas. तो where P is equal to NR by V into T, तो ये कांस्टेंट हो गया, करेक्ट? आई गेस इसका और बॉयल्स सॉरी चार्ल्स लॉ के जो ग्राफ्स हैं वो इक्वली रहेंगे, राइट? यस सर। ऐसे ही रहने वाले जैसे हमने पहले किए थे। तो स्ट्रेट लाइन आएगा, दो ले लो, ठीक है? एंड इस केस के अंदर भी अगर टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस ले रहे हो तो ये आएगा, एक आएगा ऐसा और दूसरा आएगा ऐसा। लेट्स से टेम्परेचर ले लिया T1, टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम ले लिया V1, वॉल्यूम ले लिया V2, नंबर ऑफ मोल्स N, नंबर ऑफ मोल्स N, वॉल्यूम ले लिया V1, वॉल्यूम ले लिया V2। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मुझे पता है यहाँ पे तुमने प्लॉट किया प्रेशर और यहाँ पे प्लॉट किया टेम्परेचर, जो स्लोप है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये θ1 है, ये θ2 है, कौन सा स्लोप ज्यादा? θ2 या θ2? अरे θ2 ज्यादा है, θ1 ज्यादा? सर θ2। अच्छा, तो वॉल्यूम कौन सा ज्यादा? सर वॉल्यूम V1 ज्यादा है, V2 कम है। समझ में आई बात? यस सर। यहाँ पे भी ये हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में प्लॉट कर रहा हूँ। अगर डिग्री सेल्सियस में प्लॉट करोगे टेम्परेचर को 273 प्लस थीटा डिग्री लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 273.15 इंटू NR बाय V प्लस NR बाय V थीटा डिग्री सेल्सियस। तो थीटा डिग्री सेल्सियस को प्लॉट करें डिग्री सेल्सियस को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा स्लोप, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट जो कि यहाँ बना दिया है, एंड ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वॉल्यूम, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वॉल्यूम। अरे हाँ यार, कम होगा कि बढ़ेगा क्या है ये? जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका वॉल्यूम। अरे कम है। कम होगा ना, तो वॉल्यूम कम किसका ज्यादा, किसका होगा? V1 का या V2 का? V2। हाँ, V2 का ज्यादा होगा। सर V2 का कम होगा, V1 का ज्यादा होगा। बस डन हो गया। अंडरस्टूड? डन? Yes, sir. Clear up this? Yes, sir. Just a minute, sir. Okay. हटाओ इसको। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Avogadro's law.
What is Avogadro's law? Sir, number of moles is directly proportional to volume. Two gases at same temperature and pressure having same volume will have same number of molecules in bracket moles, not atoms. सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं बोला मैंने, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला। मतलब क्या है इसका? अगर सपोज करो मेरे पास दो कंटेनर है, एक दो, ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर, इसके अंदर ऑक्सीजन, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर T, इसका प्रेशर P, इसका प्रेशर P। मतलब अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो PV इज इक्वल टू NRT। सुना है? अगर दोनों गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, R तो कांस्टेंट है ही है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे सर। सेम होंगे, PV by RT, राइट? यस सर। दोनों का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ सेम है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 सेम है। अब नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं, है ना, 1 मोल है और 1 मोल है, मान लेते हैं। यस सर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए? अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट? यस सर। CO2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हुए ऑक्सीजन के? अवोगाड्रो ओनली, है ना? हाँ सर। अब मेरे को एक बात बताओ, एक मोल में कितने मोल ऑक्सीजन एटम? अरे एक मोल ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन एटम? दो। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल एटम्स टोटल? 3। तो मैंने क्या कहा, इनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सेम होंगे, एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल सेम होंगे। दैट इज अवोगाड्रोस लॉ। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, अभी हटाऊं इसको सर 1 मिनट। ओके। तो सर मतलब इस केस में वॉल्यूम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। गाइस हटाओ। यस सर। Yes, sir. ग्रेट। डेरिवेशन ऑफ
डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सुना कैसे डिराइव करते हैं। सपोज एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर ए से मैं पॉइंट नंबर बी जा रहा हूं, देन पॉइंट नंबर बी से आई एम गोइंग टू पॉइंट नंबर सी। यहां पे जो गैस लिया उसका प्रेशर था P1, उसका वॉल्यूम था V1, उसका टेम्परेचर था T1। गेटिंग इट? यस सर। राइट। अब मैंने क्या किया, इसका एक इंटरमीडिएट प्रेशर लेके आया P, V एंड वॉल्यूम रखा T1। कोई दिक्कत? सर तो इस केस में टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा मतलब अब तक तो। एक काम करते हैं, प्रेशर P2 ले लेते हैं, वॉल्यूम V ले लेते हैं और टेम्परेचर T1 ले लिया। कोई दिक्कत? नहीं सर। वेरी गुड। उसके बाद जब तीसरा पॉइंट आया उसमें मैंने प्रेशर ले लिया P2, वॉल्यूम ले लिया V2 एंड टेम्परेचर ले लिया T2। कोई दिक्कत? नहीं सर। मेरे ऊपर है ना ये, तो कैसे हाँ। भी करूं। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं A से B जा रहा हूं और B से C जा रहा हूं, तो A से B में मैंने नंबर ऑफ मोल्स N रखे हैं और N रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा लॉ लगेगा A और B के बीच में? इन प्रोसेस A to B क्या लॉ लगेगा? हाँ, बॉयल्स लॉ। कौन सा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P1 V1 is equal to P2 V2. Yes sir. Shall I say that P1 V1 is equal to P2 V? Understood? This statement 1. So what is the value of V I'll get over there? V should be equal to P1 V1 by P2. Correct? Yes sir. From process B to C क्या होगा? From process Charles. Yeah, I mean, noble gases will be added. One second. Charles law, right? From process B to C. So Charles law, right? Pressure constant. The pressure constant, so shall I say that V by T1 is equal to V2 by T2. Can I write down like this? Are हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So there is statement 3. Now you do one thing. Put volume V over here. So अगर मैं 1, 2 and 3 को मिलाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? From 2 and 3. 2 and 3. हाँ सर समझ गया। अरे तो मुझे पता है क्या आएगा। P1 V1 by P2 P1 is equal to V2 by T2. So P2 से लेके जाओगे? हाँ सर। So I'll get. This is P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. इसका क्या मतलब हो गया? PVT PV by T is equal to constant. हाँ सर। This is statement 4. Now understand that volume is directly proportional to number of moles. This is statement Yes sir. 5. Now understand that remove this proportionality constant. So what will happen over here? PV by T is equal to K times, or remove this constant, put that constant. If you calculate this constant, it will become NR. Understood? So what I'll get? PV is equal to NRT. NRT.
Understood? Yes, This is sir. how you derive ideal gas equation. I just solve it. I'll give you some problems to solve now. सर सर Yes, पॉइंट A2C से क्या होगा फिर? क्या बेटा? पॉइंट A2C में क्या होगा फिर? Points? A2C, हाँ, तो सर उसमें क्या होगा? यही होगा ना. A to C में जब पूरा किया तो ये आ गया ना इक्वेशन, ओके, हाँ रिलेशनशिप. यस सर यस बेटा बोलो. लास्ट पार्ट एक बार रिपीट कर दो. मैंने क्या कहा लास्ट पार्ट इतना समझ में आया बेटा? हाँ 2 और 3 को मतलब जब किया उसके बाद. इतना आ गया ना. हाँ सर. Okay. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. So shall I say that PV by T is equal to constant? Right? यस सर. उसके बाद मैंने बोला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कहना चाहिए था कुछ. क्या सर? So if I remove this proportionality constant, if I remove this constant by any calculation, I come to know that it is NR. तो मुझे पता लग गया कि NR के इक्वल है तो PV by T किसके इक्वल हो जाएगा? NR के. समझ गया सर. थैंक यू. सर सर बोल बेटा. PV by T is equal to K आपने लिखा, उसके बाद लिखा V is proportional to N. तो उसके बाद मैं डायरेक्टली कैसे लिखा PV by तो T मतलब is वॉल्यूम के NR. पास कोई वॉल्यूम के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में एक नंबर ऑफ मोल्स का टर्म आना चाहिए. करेक्ट? तो Yes, के पास एक नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए. आया ना? yes, तो अगर उसके पास नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए तो इफ आई वांट टू रिप्लेस कांस्टेंट तो उसको कैलकुलेट किया तो विल बिकम एनआर. इसको पुट कर. okay. ठीक है. सर गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? इसका गैस कांस्टेंट बता दूं. मैं अभी सब बता रहा हूँ. पहले इतना लिख लो. हाँ सर लिख लिया. लिख लिया? हाँ सर. चलो हटाओ इसको. यस सर. Okay. Now I come to know that PV is equal to nRT. Right? Now understand that what is the values of P? First and foremost thing. Pressure can be given in ATM. So pressure is equal to 1 ATM. तो अगर प्रेशर 1 ATM है ना तो that will be equal to 101,325 pascals. Getting it? अगर 1 ATM है तो 1 ATM किस किस के इक्वल होता है? 101,325 Pascal, where Pascal is SI unit. What is Pascal? Newton per meter square. Right? और एक ATM को 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी कहते हैं. जिसको 760 तो और भी बोला जाता है. Getting it?
और एक एटीएम को 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी बोलता है, वो तो कॉमन सेंस है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और पता है क्या, एक बार को, जो दूसरा प्रेशर का यूनिट है, 1 बार इज इक्वल टू 100,000 पास्कल्स बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एटीएम बड़ा या पास बार? सर एटीएम बड़ा। एटीएम बड़ा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ना 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। यस सर। सर व्हाट बेटा? सर आपने 1 एटीएम 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी क्यों बोला सर? बताता हूँ। पहले इतना लिख लिया। हाँ सर। अच्छा, आर क्या हो गया? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0.0821। जब प्रेशर तुम एटीएम में यूज करो, ओके सर। वॉल्यूम लीटर में यूज करो, और नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स में यूज करोगे, पर और पर केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में यूज करो। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.083 जब प्रेशर यूज करोगे बार में, एंड वॉल्यूम यूज करोगे लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स में ही आएगा, एंड टेम्परेचर केल्विन में ही लोगे। आर की वैल्यू एसआई यूनिट्स के अंदर, अगर एटीएम को पास्कल्स पर मीटर क्यूब लिया, लीटर को मीटर क्यूब लिया, तो ये जो यूनिट है वो एनर्जी की यूनिट हो जाती है। सो इट बी लाइक 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन। और एक जूल जो, एक कैलोरी ना 4.182 जूल्स के इक्वल होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन लिख देता है। ये आर की अलग अलग वैल्यूज हैं और ये याद रखनी है। गेटिंग इट? यस सर। Yeah, you have to understand and remember those particular definition properly. Yes sir. Yeah. हटाओ इसको। यस सर। सर जब हम एटीएम और लीटर लेते हैं तो फिर जूल मोल हो जाता है ना? क्या बेटा? सर जब हम एटीएम प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं तो फिर जो वो एनर्जी की यूनिट बन जाती है ना, जूल। हाँ। ओके सर।
guys done? बेटा लिखा है इतना? Yes, sir. Okay. I guess we'll wind up right now. ठीक है, we'll continue in the next class. ठीक है, मैं भेजता हूँ तुमको एक असाइनमेंट करने के लिए. ठीक है, Okay, sir. विल बी डिस्कस. चलो बाय बेटा, टेक केयर. थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय. So Lika, you understood today? Yes, sir. Where is Zeal?